सो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज द सेट ऑफ वैल्यूज सेम, ओके, बट dictionary contains the key and value. Okay, what is the key, what is the value? Okay, so suppose you want to store the data like the roll number, phone number. Okay, हम लोग मोबाइल में फोन नंबर कैसे स्टोर करते हैं? बाय नेम. ओके, नेम एंड देन फोन नंबर, नेम देन फोन नंबर. ओके, नेम फोन नंबर. ओके, so this phone number is a value and the Ramesh is the key. ओके, सपोज नाउ बायोडेटा मुझे स्टोर करना है. सो बायोडेटा हम लोग कैसे लिखते हैं? नेम, हेमंत, क्लास 11, एड्रेस, लोनावाला, रोल नंबर, दिस वन. ओके, सो टू स्टोर दिस टाइप ऑफ डेटा वी यूज डिक्शनरी. यहाँ पर क्या होगा? एक आपकी फील्ड है और सेकेंड आपकी वैल्यू है. ओके, यहाँ पर क्लास है, उसकी वैल्यू है, एड्रेस उसका वैल्यू है, सपोज नेम एंड देन उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये नेम कॉन्टेक्ट नंबर. ओके, सो डिक्शनरी, उसकी नेम से क्लियर है. डिक्शनरी इट मीन्स आपका मेन वर्ड होगा एंड देन उसकी वैल्यू होगी. ठीक है, सो डिक्शनरी क्या है? द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमा इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. ओके, क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. की वैल्यू पेयर्स मतलब ये आपका की हो गया, ये वैल्यू होगी. ओके, so जो फील्ड नेम है दैट इज अ की एंड द वैल्यू है दैट इज अ वैल्यू. Okay, so it's the collection of key value pairs. Key value pairs. Okay, so is a one pair. Next pair is the class. Next pair address. Next pair roll number. Okay, or we can use dictionary for the contact numbers. To maintain the contact numbers, we use dictionary. Okay, so the definition of dictionary is that it is a collection of the key value pairs separated by comma enclosed in curly braces. Okay, enclosed in curly braces. So how we create one dictionary? So to create a dictionary, we like, okay, we use one variable, curly braces, then name, okay, it's your name in double quotes, okay, and then value, because name क्या है आपका? string है. Okay, class value, address value, roll number value. Okay, so the properties of the dictionary is that it is a mutable. Mutable, it means we can change it. Okay, the key of dictionary is immutable, so the key cannot be changed. Okay, it's unordered. Unordered, it means like in a string or in list we have indexes 0 1 2 3 4. Okay, we have proper indexing. Okay, so there is a proper indexing 0 1 2 3 4. We know the exact sequence of the characters, but यहाँ पर जो की होती है that works as an index. The key works as an index. ठीक है, so हम लोग की के थ्रू यहाँ पर सब कुछ हैंडल करते हैं. Okay, so index maintained by the keys, not by the integer values. So इसलिए क्या है आपका unordered है. It's a sequence, but it's a unordered. Okay, so डिक्शनरी बनाने के लिए हमें क्या करना है? We use value, key, initially the, ये जो है आपका क्या है? की है. Okay, it's your key. Okay, and this is value. Again key, value, key, value. So key values are separated by the column, and one pair is separated by another pair by comma. Okay, so it's your key, it's your value. So suppose now, suppose मुझे किसी फोन नंबर्स के लिए डिक्शनरी बनानी है. Okay, this के लिए. Now how we can create dictionary for this? इसके लिए हम लोग डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा? तबस्सुम?
तबस्सुम, Yes, sir. कोड बता सकती हो? क्या लिखेंगे? Okay, so we use any one variable. Okay, suppose dc या dct, जो भी लिखना है आपको. Okay, it's a variable. We use curly braces. अब ये जो नेम है, इसको नेम को हमें की बनानी है. ओके, ये की बन गया. इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ये आपका फोन नंबर हो गया. ओके, देन कॉमा, नेक्स्ट की, नेक्स्ट अशोक. ओके, सो इट्स की, देन इट्स अ वैल्यू. Okay, because it's an integer constant or it's a string constant. Okay, ये क्या है? String constant. So यहाँ पर confuse नहीं होना कि why we are enclosing in double quotes. Okay, so if suppose we write like this, then it will be treated as a variable. Okay, but we don't have any variable like Ramesh, so we are making it as a string constant. Okay, and it's an integer constant. It's integer constant. Okay, so either we can enclose in a double quote, single quotes, no matter, but a numeric value can be without quotes. Okay, so next suppose Sunil. Okay, so we make it the key. कैसे बनाएंगे? डबल कोट्स में, बिकॉज इट्स a string constant and ये इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई. ओके, नेक्स्ट आतिश, आइस, जो भी है, then it's your value. ओके, ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. स्वराज? ओके, Yes, sir. so it's a key, ये value, key value. So key value is separated by the colon. Okay, ये किसके थ्रू सेपरेट है? कॉलन के थ्रू. But one pair is separated by another pair by comma. Okay, comma it means first pair यहाँ पर complete हो गया, next pair we are going to start. ठीक है, so we can print. Okay, both we can print. So initially your first dictionary, it's your second dictionary. Okay, so suppose मुझे किसी एक स्टूडेंट का प्रॉपर डेटा मेंटेन करना है, so we can write name, class, okay, address, roll number. Okay, इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन है, why in double quotes both the values are double quotes? कुछ कंफ्यूजन है? तबस्सुम, sir. राजदीप? No, sir. No, sir. ओके, क्यों है डबल कोट्स में? बताओ, लोनावाला डबल कोट्स में क्यों है? सर क्योंकि वो वर्ड है और वर्ड जो वैल्यूज होते हैं उसको अगर वो वर्ड्स में है तो उसको डबल कोट में रखना, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर उसको नहीं रखोगे चलेगा. ओके, ठीक है, करेक्ट है, बिकॉज इट्स ए स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग वैल्यू है. ओके, वी कैन से इट्स ए स्ट्रिंग वैल्यू और द टाइप ऑफ द वैल्यू इज ए स्ट्रिंग. ठीक है, सो स्ट्रिंग को हमेशा कैसे रखना है? डबल कोट्स में रखना है. आइदर वी कैन यूज अ सिंगल कोट और डबल कोट. सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, बट न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते हैं. ठीक है, सुनाओ, ये पार्ट क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन है कुछ? ओके, नेक्स्ट. No, Suppose sir. I want to create one empty dictionary. So empty dictionary can be created like this. Okay, so empty dictionary, we just create one variable and we put two curly braces without any value. Okay, so it's called empty dictionary. This dictionary contains 0 element. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Empty dictionary. So the one more way that we can create empty dictionary like dict. Okay, if you print D, then it will print empty dictionary. Okay, so there are two ways that we can create empty dictionary. जैसे लिस्ट के लिए था, द सेम वे.
लिस्ट का पता है आपको? लिस्ट में भी हम लोग क्या करते थे, लिस्ट क्रिएट करते थे. तो देयर इज वन वे टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट. ओके, अनदर वे क्या था, L1 इक्वल टू वी यूज लिस्ट ओनली. ओके, एंड देन प्रिंट L1. सो ये दोनों ही तरीके क्या हैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के. सो दिस वे वी कैन क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, or another way we can create empty list. So in the same way we can create empty dictionary like this or like this. So यहाँ पर हम लोगों ने list function यूज किया था, यहाँ पर हमने क्या function यूज किया, dict. Okay, now okay, ये clear है. Now how to add values into a dictionary. Suppose we have one dictionary and I want to add the key value pair. Okay, I want to add key value pair. Now how? So suppose we have one empty dictionary, so we can use the indexing method. Indexing method पता है सबको? So in bracket, in the square brackets, we use indexing. So suppose list में हम लोग क्या use करते थे, 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, whatever we want to use, we can use a particular index. So in the same case, we can use the particular key which we are going to insert into the dictionary. Okay. So D equal to D in square brackets, we have row number and at the right side its value. Right side में क्या है इसकी value है. So roll number and its value. Okay, just like that. So print D. जब हमने प्रिंट किया तो हमें क्या मिला, रोल नंबर 101. ओके, ये क्लियर हुआ. सिंपल ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं. लिस्ट में हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, देर आर 2-3 मेथड्स. वन इज द बाई L0, L1, L2. हम लोग ऐसे यूज नहीं करते. उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज द इंसर्ट फंक्शन and one more function that is append function. Okay, so there are two functions we use in list, but dictionary के पास कोई function नहीं है. ठीक है, so we can use directly D roll number 101. ठीक है. The next thing, suppose I want to change, by mistake I entered 101, instead of 101 I want to insert 102. Okay, so suppose अब मुझे इसको चेंज करना है, 101 को 102 करना है. So now we have one dictionary like this, D roll number equal to 101. Okay, so update भी कैसे होता है, in the same way it's updated, in the same way updated. So how it works, ठीक है. So ये क्या करता है, it will update because the key is already available in the dictionary. ठीक है. So ये क्या करता है, suppose ये मेथड, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, the system will check that particular roll number is available or not. If not available, it will add into the dictionary. Okay, and if available, then it change its value. ठीक है. If not available, it will add it. If available, it will change it. ये क्लियर है? यस सर. ठीक है. अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इफ नॉट अवेलेबल ऐड कर देगा वो ऐड वैल्यू. कर देगा. ठीक है, और अवेलेबल है तो चेंज कर देगा. ठीक है. सो सपोज ये डिक्शनरी हमारे पास है, so we can change the key value pair only. Okay, only value we can change it, we cannot change it key. की हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. किसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो बिफोर अपडेशन डी हमने यहाँ पर प्रिंट किया. ओके, सो नाउ सपोज अब मुझे इसको चेंज करना है, रोल नंबर को क्या करना है, 102 करना है. सो वी कैन राइट डी इन ब्रैकेट रोल नंबर. ओके, रोल नंबर इक्वल टू 102 किया. ठीक है, and then now we print D. Okay, क्या था यहाँ पर 101, now क्या हो गया 102 हो गया. So if available it changes. Okay, अब suppose मुझे कुछ इसके आगे name ऐड करना है, so we can add the name. So ये क्लियर है, क्या कर किया इसने, इसको चेंज कर दिया.
ठीक है. नाउ सपोज आई वांट टू ऐड, एक नेम ऐड किया. ओके, सो अब नेम इसमें अवेलेबल नहीं है, ओनली द रोल नंबर की इज अवेलेबल, सो इट विल चेक द की ओनली. ओके, द की अवेलेबल है तो चेंज कर देगा, नॉट अवेलेबल देन इट विल ऐड विद द की एंड वैल्यू बोथ. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ गया, इसने नेम ऐड कर दिया, रोल नंबर सेम 102, ये हमने यहाँ पर चेंज किया है, बट नेम इसमें अवेलेबल नहीं था, सो इट विल एडेड. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या हो रहा है, हम लोग डिक्शनरी में ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, इसकी वैल्यू. ओके, लास्ट में हमने प्रिंट किया. सो इनिशियली वी हैव एम्प्टी डिक्शनरी. इनिशियली आपके पास क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी. ओके, बाद में हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को इसमें ऐड कर दिया एंड देन वी प्रिंट इट. ओके, ठीक है, रोल नंबर 20. नाउ अब रोल नंबर को मुझे चेंज करना है, सो मैंने क्या किया, रोल नंबर को चेंज करने के लिए द सेम वे, डी रोल नंबर इक्वल टू 24. ओके, तो जहाँ 20 था वो क्या हो गया, 24 हो गया. देखो यहाँ पर रोल नंबर चेंज हो गया. ओके, सो ऐड करने के लिए भी वही मेथड है एंड चेंज करने के लिए भी सेम मेथड है. इफ नॉट अवेलेबल इट विल बी एडेड, इफ अवेलेबल इट विल चेंज इट. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ टू डिलीट ए की फ्रॉम अ डिक्शनरी. सो अभी हमने ऐड किया, अब सपोज मुझे डिलीट करना है. ओके, सो हाउ वी कैन डिलीट इट. So we can delete, there are two methods, one is the pop, second one is the del. Okay, del method. So by using the pop method we can delete the key and its value. Okay, so जैसे हमने list में use किया था, in the same case we use in dictionary. So list में एक difference था, in a list the pop can be used without argument or with argument, दोनों. With argument it means without index, suppose if you use then it will delete the last element. But in dictionary we cannot use pop without any argument. We have to supply argument or the key compulsory. Okay, so whatever the key we supply in pop function it will delete it. Okay, so suppose name d pop name into d, name is available, it will be deleted. Okay, but suppose if you use the key which is not available, okay, suppose if you use name 23, okay, then ये क्या करेगा, it will generate error. Okay, if not available it generate error to delete the key and its value. Okay, not available, then it generates error. Okay, clear है? Why error is generating? Because the key value is not available. ठीक है, so the pop can be used to delete the key. Okay, इतना clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now del can also be used. Okay, del, जैसे हमने लिस्ट में यूज किया था, del d name. लिस्ट में हम लोग क्या यूज करते थे, del लिस्ट का नेम और इंडेक्स. इन द सेम केस यहाँ पर इंडेक्स किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, कीज के थ्रू. सो वी आर यूजिंग द की एज इंडेक्स. सो del d name डिलीट हो गया. ओके, सो द सेम कैन बी यूज्ड. What the difference between pop and del? डिफरेंस क्या है? पॉप डी डॉट के बाद आता था और डेल डी के पहले. नहीं, इट्स अ सिंटेक्स, बट दोनों का वर्किंग क्या है, सेम है. बोथ आर यूज्ड टू डिलीट द वैल्यूज.
What the difference between del and pop? ठीक है. So the difference is that by using the pop, okay, pop के through हम लोग क्या कर सकते हैं? We can delete all the keys. We can delete all the keys, and we can delete up to empty dictionary. ठीक है. It means we can delete all the key value pairs only, but we cannot delete the dictionary D. हम लोग क्या डिलीट कर सकते हैं? पॉप के थ्रू क्या डिलीट कर सकते हैं? वी कैन डिलीट दिस पेयर, this pair, this pair, this pair, and we can make the dictionary empty. Okay, ये किसके थ्रू? पॉप के थ्रू. But we cannot delete D. The structure of the dictionary is available in the memory. Okay, but what a del can do, del can delete the complete structure also with all the values. ठीक है. del क्या करता है? इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर सकता है. Can delete the key value pairs also, and can delete the object also. Okay, so D is like a container, so ये इस कंटेनर को भी डिलीट कर देता है. बट पॉप क्या करता है? पॉप कैन नॉट डिलीट द कंटेनर. ओके, जैसे सपोज कुछ खाने की चीजें, सपोज वी हैव वन पैकेट ऑफ द चिप्स. ओके, सो हम क्या खाते हैं? क्या खाएंगे हम लोग? बताओ. चिप्स. चिप्स खाएंगे. चिप्स. बाहर का रैपर है, वो क्या होगा? एज इट इज होगा. कंटेनर विल बी अवेलेबल आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ ऑल द चिप्स. ठीक है. सो कंटेनर इज स्टिल अवेलेबल. सो ये कौन करता है? पॉप करता है. पॉप कैन ईट ओनली चिप्स. पॉप क्या करता है? ओनली चिप्स खाएगा. बट डेल कैन ईट रैपर आल्सो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. ठीक है. हाउ? सो चिप्स तो खाते ही खाता है. इन दिस वे इट कैन ईट द चिप्स. बट सपोज डेल, आई राइट डी. ठीक है. क्या लिखा? डेल डी ओनली. सो नाउ व्हाट इट विल डू? और सपोज अब हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट डी. देखो इसको. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? नाउ ये तो प्रिंट हुआ. स्वराज, हटाओ इसको. सो डी नेम यहाँ पर डिलीट हुआ. द रोल नंबर, क्लास एंड एड्रेस. ओके, इट्स अवेलेबल. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट कमांड वी यूज del d. जैसे हमने del d यूज किया, आफ्टर डिलीटिंग द डिक्शनरी वी आर गोइंग टू प्रिंट डिक्शनरी. नाउ इट जनरेट एरर दैट d इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने क्या किया? ग्रेपर को भी खा लिया. ओके, सो इन दिस वे यहाँ पर del d ये क्या करता है? जैसे हमने del d यूज किया, it delete the whole structure with all the values. ये क्लियर है? So this is the basic difference between del and pop. Okay? So यहाँ पर del क्या किया? Deletes the structure of dictionary also. ओके, इसने क्या किया? जो रैपर था, कंटेनर था, उसको भी डिलीट कर दिया. ना कुछ है ही नहीं. अब हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं डी. ना ये बोलेगा कि डी तो है ही नहीं मेमोरी में, डी तो डिलीट हो गया. ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर? इसमें डाउट है? नो सर. So, ओके, इसको देखना है तो और देख सकते हैं. Just like in Python tutor, there is a website. Now we can visualize. ठीक है, live programming mode. Or suppose we have this one. Okay.
सो सपोज इसको मैं हटा देता हूँ. नाउ वी हैव वन डिक्शनरी. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है येलो बैकग्राउंड में, इट्स ए डिक्शनरी, इट्स एन ऑब्जेक्ट. So what we can delete? We can del name. Okay. So initially we have dictionary like this. Okay. So name था, यहाँ पर देखो name है, जिसे हमने किया यहाँ पर del d bracket में name. Okay. Then it deletes the name only. Name capital है. Okay. N capital. So देखो name यहाँ से delete हो गया. If you use del roll number, okay, यहाँ से roll number delete हो गया. Okay, if you use del what class, okay, now class, okay, class delete हो गया. क्या हो जाए? only address, okay, only address was remaining. Now but suppose if you use del d, what it will delete? It deletes the complete dictionary with all the values. दिख रहा है आपको? हट गया. स्वराज, del d, delete the complete structure. Nothing is in memory. So if you print after delete d, it generate error. Okay, क्या generate करेगा? That d is not available. Name d is not defined because nothing in memory to display. Okay, so again we come to our code. Okay, so del and pop both can be used. Now print keys only. Suppose हमें key print करना है. Okay, so now key क्या है? Roll number, class and address. To print the keys only, we can use the for loop. Okay, जिससे हम लोग लिस्ट में यूज करते थे. So when we use the for loop for a dictionary, it will access what it will access? It will access the keys only. Okay, जैसे हमने for loop लगाया तो ये क्या लेगा? Only इसकी की ले लेगा. ठीक है, so for I in D, okay, now I will contain the keys only, roll number, class, matrix. It print keys only. Okay, so we can print element with the keys. How we can print? We use the same indexing method. Okay, so value कैसे print करेगा? D in square brackets will supply the key. Okay, now key किसके पास है? I के पास. देखो I ने यहाँ पर क्या प्रिंट किया था? रोल नंबर, क्लास, एड्रेस. और रोल नंबर क्या ये है, क्लास ये है, एड्रेस ये है. सो जब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में देते हैं तो ये क्या करता है? प्रिंट करता है. सो ओके, सो वी कैन प्रिंट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द कीज, जिससे ऊपर था. ठीक है, सपोज यहाँ पर मुझे ओनली एक ही वैल्यू प्रिंट करना है. सो वी कैन यूज डी इन ब्रैकेट, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना लिस्ट में कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है. इन द सेम केस ओके, नेम हमने डिलीट कर दिया. रोल नंबर सपोज मुझे प्रिंट करना है. ओके, सो रोल नंबर देखो क्या प्रिंट हुआ? 20 प्रिंट हुआ, जैसे हम लोग लिस्ट में यूज करते थे. इन द सेम मेथड, सेम मेथड. ठीक है, सो इन द सेम मेथड वी आर यूजिंग दिस डी इन ब्रैकेट में आपकी कीज, और की किसके पास है? आई के पास. ओके, सो इट प्रिंट द की वैल्यूज, प्रिंट द की वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पर देखो की क्या है? रोल नंबर, मतलब आई की वैल्यू क्या है? रोल नंबर. वैल्यू, वैल्यू आपको प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? ऐसे यूज करेंगे. ओके, डी इन ब्रैकेट आई. प्रिंट कीज ओनली की फंक्शंस. नाउ देयर इज अ फंक्शन कीज. ओके, सो कीज एक फंक्शन है जो कि हम लोग ओनली कीज प्रिंट कर सकते हैं. वी कैन यूज द डी डॉट कीज. सो बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग द फंक्शन डी डॉट कीज. ठीक है, सो इट विल प्रिंट द कीज, डिक्शनरी कीज. सो कीज एक फंक्शन है. यदि हमें ओनली की प्रिंट करना है डिक्शनरी का, सो वी कैन यूज डी डॉट कीज, और की कैन बी यूज इन ए फॉर लूप ऑल्सो.
ओके, सो बाय डिफॉल्ट व्हेन एवर वी यूज लाइक यहाँ पर, तो ये क्या लेता है, डॉट कीज लेता है। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, की होगी। व्हेन वी execute the print statement, then it will print key only. Okay, so now there is a function, suppose आपको separately print करना है, जैसे मैंने यहाँ पर print किया है, so it's a dictionary keys, ऐसे आपको दी जाता है। Okay, print the values, जैसे values print करना है, तो there is a function values, तो ये क्या बनाएगा, list का values बना देगा, सॉरी values का list बनाएगा, so it makes the list of all the values। ओके, और उसको हम लोग for loop के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। सो अभी हमने यहाँ पर क्या प्रिंट किया था, प्रिंटिंग बोथ द कीज एंड वैल्यूज। यहाँ पर सेपरेटली की प्रिंट किया था, इधर भी हमने सेपरेटली की प्रिंट किया था। ठीक है, सो इसी की के थ्रू हम लोग वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं और वी कैन यूज द वैल्यू फंक्शंस आल्सो, दोनों ही हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बाकी हम लोग कल देखते हैं। ओके, आइटम फंक्शन है ये हम लोग कल देखते हैं। ओके, सो Okay, sir. आफ्ताब, यस सर। और कौन कौन था अभी, आफ्ताब एंड वन मोर, और कोई है, बस इतना ही है, तबस्सुम, स्वराज, सराजदीप, दुर्वेश, आफ्ताब, और कोई था क्या? No, sir. नो। No. ओके, ठीक, ओके, कल मिलते हैं, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you.